وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شیروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ آمین۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر فتویٰ لگایا گیا۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے، یسوع پر فتویٰ لگایا گیا۔ یہ آج کلام کا عنوان ہے، سب بولیں، یسوع پر فتویٰ لگایا گیا، یسوع پر فتویٰ لگایا گیا۔ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح پر فتویٰ لگایا گیا، خداوند یسوع مسیح کو قربان کیا گیا، خداوند یسوع مسیح پر کوڑے مارے گئے، خداوند یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں کو چھید دیا گیا۔ میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں، دنیا ایک مسیحا کا انتظار کر رہی تھی، اور سال ہر سال سے اور صدیوں سے دنیا انتظار کر رہی تھی کہ ایک مسیحا آئے گا، وہ ہم کو نجات دے گا، وہ ہم کو رہائی دے گا۔ اور لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایسا مسیحا ہوگا جو ہم کو گناہوں سے رہائی دے گا، وہ ایسا مسیحا ہوگا۔ اندھے لوگ سوچتے ہوں گے کہ خداوند ہمارے زمانے میں آ جا تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، کوڑی سوچتے ہوں گے اے کاش مسیحا ہمارے دور میں آ جائے تاکہ ہمارا کوڑ جاتا رہے، اور لنگڑے اور جتنے بھی بیماری سے گرفتار تھے، بدبو کی وجہ سے دکھ سہتے تھے، اور طرح طرح کے بیمار لوگ، اندھے، لنگڑے اور تمام اپاہج لوگ اور گناہگار لوگ، بوجھ کے تھکے ماندے لوگ انتظار کر رہے تھے سال سال سے، ہزاروں سال سے، کہ ایک مسیحا آئے گا، وہ ہمیں نجات دے گا، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ لیکن میرے عزیز پیارے بہن اور بھائیوں، خوشی کی خبر یہ ہے کہ مسیحا آیا، لیکن افسوس کی خبر یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو نہ پہچانا۔ جس مسیحا کا دنیا انتظار کر رہی تھی، جس مسیحا کے لوگ منتظر تھے کہ وہ آئے گا اور ہمارے لیے ایک نجات کا راستہ ہمیں بخشے گا، ہمیں نجات دے گا، ہمارے گناہوں کو اٹھا لے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یسوع آ گیا، 2000 سال قبل داؤد کے شہر بیت لحم میں وہ مسیحا پیدا ہو گیا، اور جب وہ پیدا ہوا وہ دنیا میں آیا، اس نے اناؤنس کیا، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ میں اندھوں کو آنکھیں کھول دوں، میں اندھوں کو بینائی دوں، اور بدرو گرفتوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور اس نے اعلان کیا، جس مسیحا کا انتظار کیا جا رہا تھا، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ جب اس نے اعلان کرنا شروع کیا، جب اس نے پیغام سنانا شروع کیا، اور ابلیس کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا، ابلیس ہمیشہ سچے کلام کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم یہاں پر عبادت کرتے ہیں، ہم اور جگہوں پر جاتے ہیں، جب بھی انجیل کی منادی کی بات ہوتی ہے ابلیس رکاوٹ ڈالتا ہے، ابلیس ماحول کو خراب کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ابلیس کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو شکست دے دی ہے۔ ابلیس ہارا ہوا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ فتح مند ہے۔ 2000 سال ہوئے، جس مسیحا کی دنیا منتظر تھی وہ مسیحا آ گیا، اس نے پیغام دیا، اس نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں، اس نے کہا اے باپ، اس نے کہا جو خدا ہے میرا باپ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ جب اس نے آ کر خوشخبری دی جس کا انتظار کر رہے تھے، جب اس نے خوشخبری دی تو وہ خوشخبری ہضم نہ ہوئی، وہ خوشخبری برداشت نہ ہوئی، وہ کلام کتاب نہ لا سکے۔ کلام اتنا اثر رکھتا ہے، کلام ایک ہتھوڑا ہے، ہتھوڑا جس کو پڑ جائے وہ سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہاں، جس کلام ایک آئینہ ہے، آئینہ آپ کو بتا دیتا کہ آپ کے چہرے پہ کہاں کمزوری ہے۔ کلام ایک چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام جب سنانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے مخالفت کی، اور لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے ستودا کا بیٹا، یہ کون ہے یوشع بڑھئی کا بیٹا، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو۔ میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں، لیکن یسوع مسیحا جو تھا جس پر فتویٰ دیا گیا، اس پر فتویٰ دیا گیا، لیکن یاد رکھیں وہ جس انسان کو بچانے آیا اسی نے فتویٰ لگوایا۔ سنیے ذرا متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے، دیکھیں متی کی انجیل اس کا 26واں باب ہم دیکھیں گے جلدی سے۔ خدا کے کلام میں سے ایک دو ریفرنسز دیکھیں گے، ہم زیادہ لینتھی کلام نہیں سنانا چاہتے۔ متی کی انجیل کا 26واں باب، یہاں پر لکھا ہے ورس 59 سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔
और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। हालेलुया। झूठी गवाही ढूंढना चाहिए मगर ना पाई। मसीहा के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि आपके और मेरे मसीह के अंदर कोई कमजोरी नहीं। हालेलुया। वो सरासर पाक है, वो सरासर होली है। अभी हम गा रहे थे यू आर होली। वो नूर है, वो सरासर रोशनी का मंबा है। हालेलुया। लोगों ने मशवरे किए, उन्होंने कहा कौन सी बात से इसको फंसवाएं। लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कुछ भी कह दो। उन्होंने कहा जी कैसे कुछ भी कह दे, वो तो बड़े इख्तियार वाला है। लिखा है उन्होंने उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे मगर ना पाई। बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा, इसने कहा है खुदा के मकदस को ढा दो। इसने कहा है कि खुदा के मकदस को मैं ढा सकता हूं और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। पहले वो मशवरा कर लेंगे क्या बात कहें, इसके बारे में ये कह दें कि ये हेरोदेस के खिलाफ बोलता है, बादशाह के खिलाफ है, कैसर के खिलाफ है। उसने कहा नहीं भाई, वो तो दुनिया जानती है। जब हमने जमाया था, उसको सिक्का दिखाया था, उसने कहा था इस पे शक्ल किसकी है, सूरत किसकी है। उन्होंने कहा इसके ऊपर हेरोदेस की शक्ल है, तो बादशाह कैसर बादशाह की शक्ल है। उसने कहा जो कैसर का वो कैसर को दे दो, जो खुदा का वो खुदा को दे दो। उन्होंने कहा और किस तरह से। उसने कहा भाई कोई बात है ही नहीं, गवाह तो आए, प्लानिंग तो की, लेकिन वो बात बनती नहीं थी। आखिर 2 उठे, उन्होंने कहा यार तुमसे कुछ नहीं बनता, हम गवाही देंगे। झूठी गवाही देनी ना, चलो हम देते हैं। उन्होंने कहा देखो बादशाह सलामत, ये हम बताना चाहते हैं आपको सर कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये जो मकदस है इसको ढा दो और मैं इसको 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि जो मकदस जो है 46 बरस में बना है, 46 बरस में वो मकदस बना है और 3 दिन में ये कैसे बना सकता है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप मुझे जवाब दीजिए जरा। वो यीशु जिसने पूरी कायनात को अपने कलाम से बना दिया, क्या मकदस नहीं बना सकता था? फिजिकली बना सकता था। वो 40 बरस क्या 40,000 बरस का भी होता बनने में, 40,000 बरस भी लगे होते तो उसने कलाम करके बना देना था। हालेलुया। लेकिन वो उस मकदस की बात नहीं कर रहा था, वो इस मकदस की बात कर रहा था। आमीन। तो उसका कलाम को लोग समझे नहीं। आज भी दुनिया कलाम को समझती नहीं है। आज भी लोग जो हैं उस कलाम को समझते, क्यों नहीं समझते? हमें कलाम की ना समझ आने की बड़ी वजह यह है कि हम क्रिश्चियन बनने की कोशिश करते हैं, चर्च के मेंबर बनने की कोशिश करते हैं, हम यीशु मसीह के शागिर्द बनने की कोशिश नहीं करते। अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द बन जाए तो खुदावंद आपके ऊपर अपने भेद खोल देगा। वो भेद की बातें शागिर्दों को बता देता था। शागिर्दों का उस्ताद हमें बताएंगे ये जो बीज बोने की तमसील, उसने सिंपल बात है, तुम्हें समझ नहीं आई, और खुदावंद ने समझा दी। किनको समझाई? शागिर्दों को। जब तक हमें कलाम समझ नहीं आएगा, जब तक हम उसकी शागिर्दियत में नहीं आएंगे, अपने आप को उसके ताबे करें। उसके ऊपर फतवा लगाया गया और लिखा, आखिर को 2 गवाहों ने आकर कहा, इसने कहा है कि मैं खुदा के मकदस को ढा सकता हूं और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते हुए देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने कहा, कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। अब उसने जब कलाम पेश किया, उससे पूछते रहे तू खुदा का बेटा है? उसने कहा तू खुद कहता है, मैं नहीं कहता। उसने कहा तू खुदा का बेटा? हाँ। उसने कहा तू खुद कहता है यीशु खुदा का बेटा। और उसने कलाम सच्चाई का फिर बयान किया, जिस कलाम की दुनिया मुंतजर थी, जिस मसीहा की, उसने फिर ऐलान किया। उसने कहा ना सिर्फ मैं खुदा का बेटा हूं, अभी हम गा रहे थे, बदला दी सवारी करके, एक दिन यीशु आवेगा। जब मैं ये बोल सुनता हूं मेरे आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी होप है। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। किसी ने मुझसे सवाल किया, मेरे दोस्त ने, उसने कहा अगर उससे पहले आप मर गए तो फिर? उसके आने से पहले तो मैंने कहा मर भी गया तो फिर भी तो जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं मरा ही थोड़ी रहूंगा, मैं मर भी गया तो भी जिंदा हो जाऊंगा उसके आने पे। मेरे पास होप है। उसने कलाम दिया, उसने कहा तुम इब्ने आदम को बादलों पे बड़ी कुदरत के साथ आते हुए देखोगे। और उसने कहा ये इसने कुफर बका है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बादलों पे आ सकता है?
ओ मेरे अजीजों, दुनिया के दिमाग में ये बात नहीं बैठती, ये दुनिया का इतना सा दिमाग नहीं समझ सकता। आज मैं अपने भाई से बात कर रहा था, दाऊद भाई से, मैंने कहा खुदा किसी खादम को शुक्रगुजारी का मुकाशवा देता है, वो शुक्रगुजारी पे पूरी दुनिया में छा जाता है। खुदा किसी को हीलिंग पे मुकाशवा देता है, वो हीलिंग के इसलिए पूरी दुनिया में छा जाता है। खुदा किसी को चौथा रुख, फोर्थ डायमेंशन का भेद खोलता है तो वो उसमें छा जाता है। खुदा किसी पर इस बात का भेद खोलता है कि पूरे तरीके से जो कुछ चाहिए मुझे, सब कुछ मांगो मुझसे, मैं तुमको दूंगा, वो इस बात से आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा अगर ये सारे खादमों की डिफरेंट जो ब्लेसिंग्स हैं, डिफरेंट जो नेमते हैं, अगर सारी एक ही के अंदर इकट्ठी कर दो तो उसे संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए वो एक को एक ही नेमत देता है कि बरकत देता है, क्योंकि एक ही खादम सब कुछ करने लग जाए तो भूल भी जाएगा, है ना। और फिर आप देखें जो हीलिंग मिनिस्टर होता है उसके अपने घर में हीलिंग की जरूरत होती है ताकि वो फख्र ना कर सके। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे, मैं अक्सर बताता हूँ, इंडियन खादम था टीबी बैरेट, उसकी बेटी अंधी थी। वो जब इंडिया से पाकिस्तान आया, काफी पुरानी बात है, तो कहने लगे कि वो अंधी थी उसकी लड़की, और उसके हाथ से मुर्दा जिंदा होते थे और उसके हाथ से अंधों की आंखें खुलती थी। तो भाई में दोनों का, सर हमने सुना कि आपके हाथ से तो मुर्दा जिंदा होते हैं, अंधों की आंखें खुलती हैं, और हमने देखा कि वाकया हुआ, लेकिन हम कैसे ये मान जाएं, लेकिन आपकी तो अपनी बेटी अंधी है। उसने कहा ये इस बात का सबूत है कि शाफी मैं नहीं, शाफी यीशु मसीह है। हालेलुया, शाफी यीशु मसीह है, शफा देने वाला यीशु है। अगर वो कमजोरी ना हो तो शायद वो फक्र कर सके, इस बात से उसको पता होता है कि यार मेरे तो बस में है ही नहीं। हाँ, हालेलुया। उसने कहा तुम मुझको बादलों पर आते हुए देखोगे। यीशु को फतवा दिया गया, इस बात के लिए फतवा दिया गया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस मकदस को अगर तुम ढा दोगे तो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यीशु को इस बात के लिए फतवा दिया गया कि उसने कहा कि मैं बादलों पर आऊंगा, और वो आएगा और जरूर आएगा। इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई फतवा दे तो दे, कोई ना माने तो ना माने, लेकिन उसका कलाम बरहक है, उसका कलाम टल नहीं सकता। जब वो झूठे प्लान बना रहे थे तो उन्होंने बड़ा कुछ सोचा होगा। मैं सोचता हूं कि ये सारी तफसील नहीं लिखी, वो काफी बहस से मुबाहिसा हुआ, बहुत से लोगों को ढूंढा, कईयों ने कुछ कहा होगा, कईयों ने कहा होगा कि यार ये बता दो कि ये पैसे जो है चंदा खा जाता है। उन्होंने कहा यार कहाँ खा जाता, थैली तो यहूदा के पास होती है, उसके पास तो चंदे को हाथ नहीं लगाता। उन्होंने कहा अच्छा ये कह दो कि ये झूठी मूठी मौजे करता है ऐसे। उसने कहा झूठे का करता, सही करता है। रोटियों को हमारे सामने हाथ लगाया था, 5 रोटियों तो हजारों खा गए थे। उसने कहा ये कह दो कि यार दावे खुदाई के करता है तो दावे करता तो है ना, खुदाई तो है जो गुनाहों को माफ करता है, खुदा ही तो है जो बीमार में मन बिठाता है, ये भी खिलाता है, खुदा ही तो है जो हवा और पानी को थमाता, तो यीशु भी थमाता है। इसमें हम इससे क्या गवाही दें। बहुत सी बातें हुई होंगी। आखिरकार उनको मिला कुछ नहीं। कहने लगे, यूहन्ना 18वें बाब की 30 में कहने लगे, उन्होंने जवाब में उससे कहा, किससे, यानी पिलातुस से, अगर ये आदमी बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। कौन सी बदकारी? बदकार औरत उसके पास आई तो उसने उसके भी पाप धो दिए। वो बदकार नहीं है, वो बदकारों को पाक करता है। वो गुनाहगार नहीं है, वो गुनाहगारों को नया बनाता है। वो अंधेरा नहीं है, वो अंधेरे में रहने वालों को नूर बख्श देता है। वो अंधा नहीं है, वो अंधों की आंखें खोल देता है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है बल्कि मुर्दों को जिंदगी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके खिलाफ कौन सी गवाही ढूंढेंगे? वो कहने लगे, सर अगर ये गुनाहगार ना होता तो हम इसको तेरे पास लेकर ही ना आते। बदकार ना होता, बदकार। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इससे बढ़कर किसी इंसान की क्या बदबख्ती होगी कि वो जिंदगी के मालिक को ही बदकार कहता है, वो जिंदगी के बादशाह को ही गुनाहगार कहता है, जो उसके गुनाहों को धोने वाला है उसी को गुनाहगार कहता है। बनी नो इंसान की आज बदबख्ती है कि बनी नो इंसान के दिलों पर पर्दा छा गया, उनकी आंखें शैतान ने अंधी कर दी हैं और आज अंधे राह बताने वाले पैदा हो गए हैं। उसके पर फतवा लगाया गया यूहन्ना 5वें बाब की 18वीं आयत में। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कह के अपने आप को खुदा के बराबर बनाता। सबत का हुक्म क्या तोड़ता था? सबत का हुक्म ये तोड़ा था, इसमें भी भलाई है। अगर आप इसको गलती समझते हैं तो ये पॉजिटिव है, वैसे गलती नहीं है, वो तो बादशाह, वो खुदा है। उसने सबत को नहीं तोड़ा, उसने सबत के दिन एक इंसान को आजाद किया जो शैतान ने जिसको जकड़ा हुआ था। एक शख्स जिसका बाजू सूखा हुआ था, सबत के दिन से उसका हाथ तंदुरुस्त किया। क्या ये बुराई है? उन्होंने उस पर फतवा लगाया कि तू तो सबत को नहीं मानता, सबत को तुम इतना मानते हो क्योंकि तुम्हारे बाप दादा मानते थे, और यीशु को हम इतना सा भी नहीं मानते क्योंकि हमें समझ नहीं आता।
उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ, सबत के दिन अगर तुम्हारा गधा गड़े में गिर जाए तो उसको निकालोगे? सबत के दिन कौन है जो अपने बैल को थान से खोल के पानी पिलाने के लिए नहीं लेकर जाता? उसने कहा सबत इंसान के लिए बना है, ना कि इंसान सबत के लिए। और इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। हालेलुया। इब्ने आदम जो खुदा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो क़यामत और जिंदगी है। मेरे अजीज दोस्तों, यीशु पर फतवा लगा दिया गया। यीशु पर फतवा उसके नजात के कामों के सबब से ही लगा दिया गया। इतने अंधे हो गए, इतनी उनकी आंखें अंधी हो गई, इतना इस जहान के खुदा ने उनको अंधा कर दिया कि उन्होंने जहान के मालिक को ही उठाकर सूली चढ़ाने का इरादा कर लिया और ये कहा कि ये गुनाहगार है। लेकिन इस प्लान को समझे ना, साल्वेशन के इस प्लान को ना समझे, नजात के इस प्लान को ना समझे। उसने ये कहा था, जिसका इंतजार कर रहे थे, जिस पे फतवा लगाया, उसने कहा था कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है? आमीन। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लेकिन उस कदूस जात को गमगीन किया गया और बहुत दुख सहा उसने। आज के दिन अगर आप ये देखते हैं कि उसने दुख सहा, आप ये देख सकते हैं, आप सिर्फ इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल इससे भी कहीं बढ़कर था। लेकिन आप इसके जख्मों को अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इस खून को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह पर जब पूरे प्रेशर था, बोझ था हमारे गुनाहों का, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है। हमें सिर्फ रोते रहने की जरूरत नहीं है। हम रोते रहते हैं यीशु को याद करके, उसके दुखों को याद कर रोते रहते हैं, उस माहौल में आकर, उस एटमॉस्फेयर में आकर, लेकिन अपनी लाइफ को तब्दील नहीं करते हैं। अपना आप यीशु को उस तरह से नहीं देते हैं, कभी कमिटमेंट नहीं करते हैं कि हाँ खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे इंजील की खुशखबरी लोगों को बताऊंगा, मैं जो कुछ तेरे लिए कर सकूंगा जरूर करूंगा, मैं रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा, मैं बिला नागा तेरा कलाम पढ़ूंगा, मैं बिला नागा तेरे इंजील की बशारत का काम करने के लिए तैयार रहूंगी। मेरे जीजो, गतसमनी बाग में खुदा के दुख इंतहाई बढ़ गए थे। उसकी पूरी जमीनी जिंदगी दुखों से भरी पड़ी थी। और उसने कहा कि लोमड़ियों के भेंट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। आज दुनिया रोती हमारे से दुआएं कराते हैं, घर मिल जाए, किराए पे मिल जाए, हमें गिरवी पे मिल जाए। मैं कहता हूं यीशु मसीह का तो घर कोई भी घर नहीं था। आप किसी चीज की तगो दौड़ ना करें। थोड़ा जिंदगी है आपकी जमीन पर, 70 साल, 70 वरे भी, 80 वरे भी, आखिर नु फिर भी फना। बाइबल जिंदगी को बड़ा मुख्तसर नाम देती है। यकूब उसको बुखारात से तशबीह देता है, अयूब उसको बादल से और हवा से तशबीह देता है, और दाऊद इसको मुसाफिर खाने से तशबीह देता है, और दाऊद नबी उसको ख्याल से तशबीह देते हैं। मेरी उम्र भी गई गुजरवी, जीने का गुजरा ख्याल। जिंदगी ये चीज है, ऐसे झपकी, आंख की झपकी की मानी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जिंदगी 70-80 साल की है, लेकिन वो जिंदगी एवरलास्टिंग, वो ना खत्म होने वाली है। उसके लिए फिक्र करें, यीशु पर फतवे देने छोड़ें। आज दुनिया भी फतवे, इस जमाने के लोगों को हमने फतवा देते हुए देखा है। वो कहते जी यीशु जिन्ना करिए मुसीबत ही पैंदिया ने, जिन्नी दुआ की साडा काम खराब हो गया, जदों भी मैं कलाम शुरू किया मेरा काम ही खराब हो गया। मैं कहा छड़ दे। कई मुझे कहते हैं जी जदों दी दुआ शुरू की ना बड़ा बुरा हाल हो गया। मैं कहा छड़ परा फिर यहो काम जिससे चलूं तेन बरकत नहीं मिल रही थी। यानी कि गोया कि वो यीशु पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि मैं यीशु को याद करता हूं, मैं मुसीबतों में फंस जाता हूं। क्या दुआ करने से मुसीबत पड़ रही है आपके ऊपर? क्या यीशु आपको मुसीबत में फंसाने वाला है? यीशु मसीह तो आपको बचाना चाहता है, यीशु मसीह तो आपको बरकत देना चाहता है। अगर इब्लीस आपको तंग करता है तो आप यीशु मसीह के पास आए। मेरे अजीज दोस्तों, उसके दुखों में बहुत सी बातें हैं। उसके दुखों में अपनों को छोड़ जाने का गम भी है। उसके दोस्त उसको छोड़कर भाग गए। उसके दुखों में उसके अपने अजीज रिश्तेदारों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके खिलाफ हो गए। इस बात का भी उसको दुख है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज कि आप खुदा के कलाम को जब सुनते हैं, आज आप यहां पर जाने से पहले आज अपना आप यीशु मसीह को जोर दीजिए। फैसला करके जाइए कि आप अब्दियत कहां गुजारेंगे। जब जमीनी सफर आपका पूरा हो जाएगा, आपके जमीनी सफर को पूरा करने के बाद आपको सुकून और आराम देने के लिए ये शख्स बेसुकून हुआ है। इस शख्स ने सारा दुख सा लिखा, वो हमारी ही खताओं के सबब से क्या किया गया। ये जो जख्म है ये इसके गुनाह नहीं है, ये जो जख्म है ये आपके मेरे गुनाह है, उसकी वजह से है।
लूका की इंजील देखेंगे हम 21वां बाब, देखें क्या लिखा है यहाँ पर। लूका की इंजील 21वां बाब 20वीं आयत से 28वीं आयत तक। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं, जो देहात में हो शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो इन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा। वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो। यरूशलेम गैर कौमों से पैमाल होता रहेगा और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। ये है खुदावन यीशु मसीह ने जो बात कही थी, जो उस पर फतवे दिए जा रहे थे। यीशु मसीह ने समझाया फिर से अपने लोगों को। यीशु मसीह ने कहा कि जब यरूशलेम को घिरा हुआ देखो, तैयारी हो रही है, आपको पता है, और एक बड़ी आलमगीर जंग वर्ल्ड वॉर होने का खदशा हो रहा है और हालात बताते हैं और फौजें घेरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये सब बातें हो और जब ये परेशानी और दुख बढ़ जाए तो जो खुशी की खबर है वो मैं आपको देना चाहता हूं। वो ये है, लिखा है 28वें आयत में, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे खड़े होकर अपना सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलती नजदीक होगी। जब ये बातें हो, जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो झुके झुके ना चलना, डरे डरे ना रहना, बल्कि अपना सर ऊपर उठाना, हालेलुया के नारे मारना, खुदा उनकी हम के गीत गाना, क्योंकि तुम्हारी मखलती नजदीक होगी। जिस यीशु पर फतवा दिया गया वो एक रोज आएगा और आप पर ना उड़कर, और जो लोग उसका बिलीव नहीं करते वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन जो उस पर ईमान रखते हैं वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने को है। लोगों ने उसको फतवा दिया, लेकिन मैं उसको फतवा नहीं देता, मैं उसको अपना बादशाह मानता हूं। क्या आप भी मानते हैं? अगर आप उसको अपना बादशाह मानते हैं तो सब लोग कहें आमीन। अगर आप उसको बादशाह मानते हैं तो सब लोग कहें खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। फिर जमाना मसीही कौम यीशु पर इल्जाम लगाती है, यीशु की तहकीर करती है, लेकिन मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आओ आज अहद करें हम मजीद मसीहा को दुख ना दें और उस पर मजीद फतवे ना लगाएं, बल्कि अपना आप उसके ताबे कर दें, अपनी जानों को उसकी हजूरी में दें, उसको अपना बादशाह माने, ताकि जब वो बादलों पर आए तो आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। ये जो हालत है, ये हालत जो है, ये हमारी रिहाई के लिए है। इस बात के लिए अगर हम दुखी हैं तो हमें तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी वजह से ये हालत है, और ये हालत इसलिए है ताकि हम सर को बुलंद करके उसकी बादशाही में दाखिल हों। हालेलुया। अगर आपको समझ आ गई है तो आए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा के जलाल पे तालियां बजाएंगे सब। थैंक यू वेरी मच।